Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and today we are going to discuss our lecture number 7 for the course Advances in Human Resource Development and Management. First of all, let me give you the review of the previous lecture. That in last lecture we have discussed different components of labor market. We have discussed labor market force, then we have discussed applicant pool, then we have discussed applicant population. How all of these components are discussed, we have are related. We have discussed it with the help of diagram. Then we have discussed certain strategic recruiting decision that a firm is to take before they are going to start their recruitment process. So they were to decide whether to go for or whether to decide whether to take this procedure recruitment in-house or they are going to give outsource this procedure for recruitment to another company. They are also to decide that whether they would be filling all of these vacancies through internal promotions or through external markets. Then we have discussed how to recruit human resources. Here we have discussed 3 aspects of recruitment. We said that personnel policies are important for this recruitment, how different policies of HR and particularly recruitment policies would be affecting the characteristics of vacancy. Here we have discussed the different strategies, different policies of an organization. It may be the lead the market pay rate, it may be employment at will, it may be certain other policy that would certainly affect the characteristics of vacancies that are being offered for the applicants to be filled by the organization. Then we have discussed how or what are the different recruitment sources that an organization would employ. Here we have discussed that there are different options within internal sources as well as external sources. Regarding internal sources, they may use their databases in order to fill a vacancy that may arise on certain contingent basis, on certain temporary or transitory basis. If there are few vacancies, so they may be filled by checking or sourcing their internal databases. Then internal sources would also include internal promotions, transfers, as well as here organization would practice the policy of job posting, where they are displaying the notice for any vacant post within company intranet, on bulletin board, within newsletter. All these things they may actually imply to recruit human resources through internal sources. Then we have also discussed within this recruitment sources that what are the external sources available for recruitment. Here we have discussed certain ways to employ their HR force, human resources, through external sources. It may be done through advertisement. It may be done through certain other policies like universities and colleges, like job fair, and like certain other methods they may employ to recruit external sources. Then at the end we have discussed how recruiter traits and behavior would affect both of these characteristics of vacancy as well as characteristics of applicants that would be going to join this organization. Well, the final choice for any applicant to join the organization would be dependent upon the match between the characteristics of applicant as well as characteristics of job. So final job offer and final acceptance of a job offer would be actually dependent upon the match between characteristics of job and characteristics of the applicant. So this was the review of previous lecture. Now we are going to start lecture number 7. That is actually an extension of this recruitment. That is, we can call it a staffing function, that it starts from recruitment and it would end at selection and finally placement of employees at their designated or vacant post. So within our today's lecture we
would discuss why careful selection is important for organizations. Here we would also discuss what is employee selection, what it is meant for. Then we would be discussing criteria for measuring the effectiveness of selection tools and methods, and how we can check the effectiveness of selection criteria or selection methods or selection tool that an organization employs, that whether they are doing a good job by making use of all of these tools and methods, or it lacks something. We would also discuss selection process. Actually, selection process is a lengthy one, and we would be discussing half of the selection process within lecture number 7, and half of the selection process would be discussed in next lecture, lecture 8. So here, out of this half portion of selection process, we would be discussing how organization would be screening applications and resumes, and how organization would be conducting or administering a certain test and taking review of the work samples for certain jobs. Now, starting with our today's lecture, our first topic for this lecture is why careful selection is important, why organization should be very much cared, very much concerned, and very much focused the moment they are going to select even a single employee. So this selection procedure starts whereby an organization has created a pool of potential applicants, or now the next step is to select the best person out of this available applicant pool. So it's very much important to be careful regarding they are going to select a single employee, because we can say that employee productivity may be enhanced through various options. We may actually introduce a new incentive system, our new compensation package may be introduced within our organization in order to enhance the productivity of employees. We may train them through innovative techniques, innovative programs in order to enhance their productivity. Well, we may introduce some of the technology within an organization in order to enhance their productivity, but all of these measures would be can be employed if we have gone for careful selection. So no strategy would be applicable unless we have selected these employees who are capable to perform on these various measures. It means that the employees we have selected must be motivated, must be able, and must be having required knowledge, skill, abilities, and other characteristics in order to perform on those. So it's very much essential for a company to enhance its employee productivity, to go for very careful selection of its employees. So employee productivities may be enhanced through various ways, but any of the way cannot be implemented unless we have gone for careful selection. Careful selection, the importance of careful selection can be seen from the fact that the moment you are going to hire, just do hard work. So hire hard and manage easy. So the people who are motivated, the people who are dependable, who are responsible, are easy to manage. So we are to take pains at the time we are going to hire, and for rest of the time we may enjoy by having good work out of these employees. So we are to concerned very carefully, very keenly regarding we are going to select, because once we have selected, we cannot actually make them to change their behavior or attitude or their skills. So it's the moment we are going to hire, so we should be very much careful regarding who should be allowed to join an organization. So here we can see that good training will not make up for bad selection. If we have selected certain incompetent employees, or employees who are not able, or employees who are demotivated, so we cannot actually improve or develop these employees by putting them or by extending them to different training sessions. So no training program can be replaced with good selection. If we have gone for bad selection, ट्रेनिंग के थ्रू उसका कुछ भी नहीं कर सकते.
हमें पहले देखना, सिलेक्शन पहले अपनी इम्प्रूव करनी है. सिलेक्शन शुड बी केयरफुल, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्चुअली इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी और देयर बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू ट्रेनिंग्स. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हैबिट्स या उनके एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू एनी अदर मेजर. आप उनकी वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करें, आप उनकी सैलरीज इम्प्रूव करें. Once you have hired, so it becomes your liability. So you are to work with these people whom you have hired actually. So you should not be committing any error while selecting employees. We can see that organization performance always depends in part on subordinates having the right skills and attributes. So organization की performance क्या है, उसके employees पे, उसके workforce पे depend करती है, that they have right skills, attributes, attitudes or other characteristics or personality. So organization performance जो है वो हमने देखने के how we can enhance this organization performance by carefully selecting the people who are a good match with the job or with the organization. तो हमें ये नहीं करना है कि एक तरह के हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और हम फिर ऑल टुगेदर कुछ और किस्म के एम्प्लॉयज़ हायर करना शुरू कर देते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स वेरी अगेंस्ट हायरिंग वर्कोहोलिक्स. ये एक टर्म है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं वर्कोहोलिक्स. Workaholics. So these people, workaholics, are always eager to work. They cannot relax. They cannot actually. ये बहुत ज़्यादा काम करने के आते वर्कहोलिक्स. ये क्रेजी अबाउट वर्क. ये आराम से नहीं बैठ सकते. दिन रात इनका होता है कि काम करते रहें. बट इट डजंट इंश्योर दैट दे आर प्रोड्यूसिंग सम इफेक्टिव वर्क. It doesn't matter, but they seem they want to actually show that they are working all the way around the clock. तो अब अगर इस किस्म के लोग आप हायर कर लेंगे और पहले आपके पास बहुत कम्पिटेंट लोग हैं, तो ये जो लोग हैं उनको भी जाकर ख़राब करेंगे. जो आपके कम्पिटेंट जो सही काम करते हैं उनको भी जाकर ख़राब करेंगे. तो आपने देखना है कि किस किस्म के एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी किस्म के अपने एम्प्लॉयज़ आपने हायर करने हैं. यू शुड नॉट बी एक्चुअली पोल्यूटिंग योर करंट वर्कफोर्स बाई हायरिंग पीपल हु आर अपोजिट टू द करंट एम्प्लॉयज़. अच्छा, नेक्स्ट है जी रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस इज कॉस्टली. सो वी कैन नॉट एक्चुअली बियर द बर्डन ऑफ रनिंग these processes again and again to hire new employees because we have some of the employees have left the organization. तो ये costly और time consuming है, तो हम इसको बार बार नहीं repeat कर सकते. अच्छा, selection is also important because careful selection would actually lead your organization to avoid lawsuits. क्योंकि आपने कोई non-discriminatory action नहीं लिया during selection, so your company may avoid these lawsuits. अच्छा, अब केयरफुल सिलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन नेग्लिजेंट हायरिंग करके तो ऐसे लोगों को कर सकती है एम्प्लॉय दैट हैव सर्टेन क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड. उन्होंने कोई क्राइम्स कमिट किए हैं, तो आपने अपना सिलेक्शन टाइम पे ये देखना है कि विच टाइप ऑफ बैकग्राउंड दे हैव. सो एट दैट टाइम यू हैव टू चेक देयर बैकग्राउंड एज वेल. तो कोई भी आपके पास क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड वाला एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना चाहिए. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स वेयर वी कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरफुल सिलेक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सिलेक्शन. सो actually this is a process through which organizations make decisions about who will or who will not be allowed to join the organization. तो किसने आना है और किसने नहीं आना, ये क्या है सिलेक्शन. आपके पास पूरा पूल है, उसमें से आपने जज करना है कि whom should be offered the job or to whom we should not be offering the job. This selection process actually begins with the candidates identified through recruitment. तो recruitment में जहाँ में आपने pool of applicant identify कर लिया, वहाँ से ये process start होता है. Next, it attempts to reduce their number to the individuals who are best qualified to perform available job. So out of that available applicant pool, we are to judge the individuals who have relevant qualification,
and who have actually ability to perform effectively on the vacant position. So इसमें से start जब हो रहा है कि बहुत सारे हमारे पास हैं, after we have actually selected a applicant pool of applicant, ठीक है ना, एक applicant pool हमने कर लिया ना, इसमें से हमने select करना है. तो इसमें पहले हम इसको reduce करेंगे, इस एप्लीकेंट पूल को रिड्यूस करते जाएंगे बाय द वे ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स. इनके टेस्ट लेंगे, इनके इंटरव्यू लेंगे, इनके फिजिकल एबिलिटी या मेडिकल के टेस्ट होंगे, डिफरेंट टेस्ट, और एट द एंड वी वुड बी हैविंग suitable candidates who would be performing well on the jobs that are open for these employees. So actually हमने इस pool of applicants को short करते जाना है. Selection क्या है, procedure है, हम इस applicant pool को trim करते जाते हैं. Well, this process will end with the selected individuals who have been placed in jobs within the organization. तो ये एंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया और उनको हमने प्लेस कर दिए एट सुटेबल पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम at the end of the recruitment and it would be ending at the placement of employees. So this is actually selection process. जहाँ पे हमने एप्लीकेंट पूल क्रिएट कर लिया वहाँ से स्टार्ट होगा और इस एप्लीकेंट पूल को हम ट्रिम करते जाएंगे और एंड पे हमारे पास कुछ रह जाएंगे एप्लीकेंट्स के, जिनमें से आउट ऑफ 5 वी आर टू सेलेक्ट 2 or 3 people. So we would be offering jobs to these 3 people, and the people who would be giving their consent to join the organization would be actually finally placed in the organization within their respective department, and this would be the end of selection process. Now here we can see that how the responsibilities are divided between HR manager and other line managers. So here we can see that what are the activities that would be performed by HR unit and by other line managers. So HR managers would be providing initial reception for applicants. So पहले इनको receive करेंगे HR management वाले. They may conduct initial screening interview. कुछ इंटरव्यू करते जाएंगे, हाँ जी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, इस तरह GPA, ग्रेड्स, इसके बेस पे इनिशियल स्क्रीनिंग करते जाएंगे. They would require to administer appropriate employment test. कुछ टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, वो ये करेंगे. IQ के टेस्ट हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के टेस्ट हो सकते हैं, ऐसे लिखवाया जा सकता है, डिफरेंट ये टेस्ट करेंगे. HR unit would be required to obtain background and reference information. उनका जहाँ पे उनका परमानेंट एड्रेस है या जहाँ पे उन्होंने पहले जॉब्स की हैं, जो उनकी यूनिवर्सिटीज़, एक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से सब ये इंफॉर्मेशन लेंगे. एंड दे में अरेंज फॉर द एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन. कोई मेडिकल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो वो ही करेंगे. देन दे वुड बी रेफरिंग टॉप कैंडिडेट्स टू मैनेजर फॉर फाइनल सिलेक्शन. तो ये कुछ प्रोसीजर करके तो अल्टीमेटली दे वुड बी रेफरिंग दीज टॉप कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड टू द लाइन मैनेजर, जहाँ पे ये अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे. अच्छा, ये क्या है, दे मे evaluate the success of the selection process. Once the procedure is completed, they would be actually assessing the success or failure of this selection procedure. Now we are going to see what are the activities to be performed by these line manager. So they would be actually giving a requisition for jobs with specific qualifications to fill jobs. बताएंगे हमें क्या चाहिए, हमें जी फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए, हमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, हमें सेल्स ऑफिसर चाहिए. तो डिफरेंट जॉब्स कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से होगी, उनकी नीड कहाँ से ओरिजिनेट होगी, फ्रॉम लाइन मैनेजर्स. वेल दीज लाइन मैनेजर वुड पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन प्रोसेस एट एज अप्रोप्रिएट. तो अगर इंटरव्यू में या किसी भी प्रोसेस में इनकी कहने की ज़रूरत तो वो वहाँ पे आएंगे, वेयर द नीड इज़ फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज लाइन मैनेजर्स. They may be required to be present in final interviews. Final interview जो selection interview है वहाँ पे ये line managers present होंगे. They would be playing their role to make final selection decision. That would be actually based on advice of HR specialist.
well, at the end they would be providing follow-up information on the suitability of selected individual. तो यहाँ पे हमने जो करें इसके evaluation करते हैं, वो feedback कहाँ से लेते हैं? Line managers उनको feedback देते हैं how they are performing on the jobs, और ये जो final selection करते हैं इसकी feedback यहाँ से आती है. They refer top candidates to managers for final selection. So this was the divide of activities or responsibilities to be performed by HR manager and different line managers. Now we are going to see that what are the strategic decisions that firm should take in order to go for this selection process. So अब इसमें हम देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने strategically क्या चीज़ें consider करनी है while they are going to design their selection process. So a selection process should be designed. In order to design a dependable selection procedure, organizations are required to first of all identify the determinants of job performance. के job performance की definition पहले होने देंगे. Job performance की definition के for a given job, what constitutes as an effective performance. किसी भी जॉब की इफेक्टिव परफॉर्मेंस क्या है? क्या एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी इफेक्टिव या उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ मैयर होगी बाय द नंबर ऑफ सेल्स दैट पर्सन इज एबल टू मेक, या उसमें उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मैयर होगी? ठीक है, तो डेफिनेशन पहले तो आपने जनरेट करनी है कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस ऑन अ गिवन जॉब. तो एक अगर डाटा एंट्री करनी है किसी बंदे ने, तो उसकी क्या नंबर ऑफ एंट्रीज मेड वो क्राइटेरिया हो, या उसमें एक्यूरेसी भी चेक करनी है. ठीक है ना, एरर्स के कितने. तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस फॉर द गिवन पोजीशन दैट इज गोइंग टू बी एडवर्टाइज्ड. अच्छा, फिर आपने देखना है, एचआर मैनेजर देखेंगे व्हाट एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड. ठीक है ना, तो टू अचीव दैट परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय में क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? उसमें एबिलिटी हो, मोटिवेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, डिपेंडेबल हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हो, इनिशिएटिव वो ले सकता हो. डिफरेंट हम करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि व्हाट आर एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन that are required to achieve that level of performance. एम्प्लॉय में क्या चीज़ होनी चाहिए जो हम जो required है in order to perform at that job. Next is we are to actually decide about a selection criterion that is a characteristic that a person must have to do the job successfully. तो अब हमने कहा उसमें ability हो, motivation हो, वो क्या लिखा sociable हो, initiative हो. तो ये सारी चीज़ें हम कैसे इंश्योर, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर ऑल ऑफ दीज एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशंस, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ डिज़ाइन करेंगे सर्टन टेस्ट, सर्टन स्टैंडर्ड्स के दिस इज़ गोइंग टू बी चेक्ड बाय दिस वे. तो इसमें IQ टेस्ट हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है, उसकी ड्राइविंग का टेस्ट हो सकता है, टाइपिंग का टेस्ट हो सकता है, हाउ टू ट्रबल शूट ऑन सर्टन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं. जो हमने कहा है कि दिस इज क्राइटेरिया दैट अ पर्सन मस्ट possess in order to do the job successfully. So this is these are the 3 guidelines in order to design a selection process that is valid or dependable, whatever we can say. Then an ideal selection process is one that supports organization's job description. तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको उस लाइन में होना चाहिए, उसी के लिए फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए जो आपने अपने जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई की हैं किसी भी जॉब के लिए. तो आपका एक्चुअली जो सारा सिलेक्शन प्रोसेस है इट शुड बी बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव मेड एट इनिशियल प्रोसीजर. जॉब एनालिसिस में आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई किया उसके ऊपर बेस करना चाहिए आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस. और वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल फॉर दिस सिलेक्शन प्रोसेस दैट इट एक्चुअली अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन, इट लेट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई पीपल हु हैव द नेसेसरी KSAOs. एक्चुअली जॉब एनालिसिस में आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये उसके जॉब डिस्क्रिप्शन है,
ये उसके एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन के थ्रू आपने कहा, जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू आपने कहा, ये उसके KSAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई किए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कि एक सेल्स ऑफिसर के लिए ये नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. नाउ योर सिलेक्शन प्रोसीजर शुड बी एबल टू select those people who possess these KSAOs. So actually here we are going to apply what we have identified in job analysis. So job analysis की actually ये application है. आप जितना मर्जी अच्छा job analysis कर लें, but if you fail, your selection procedure fail to apply those job analysis by selecting people who have required KSAO, so you can achieve nothing. तो ये एक्चुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर करेगा that your organization is able to select employee who have required KSAOs. Well, we have discussed that कि एक valid selection procedure कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना, और जॉब डिस्क्रिप्शन बेस पे हो और रिक्वायर्ड KSA उसको आइडेंटिफाई करके और पिक कर ले उन इंडिविजुअल्स. ये चीज़ें हमने कही. तो ये कैसे होगा? इट वुड बी ओनली पॉसिबल दैट आवर सिलेक्शन प्रोसीजर रिक्वायर्स वेज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन टूल. आपके जो सिलेक्शन टूल है वो कितना इफेक्टिव है वो हमने देखना है, वो कितनी उसमें वैलिडिटी या रिलायबिलिटी है, हम वो चीज़ चेक करेंगे. सो लेट अस सी हाउ वी कैन चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन टूल्स आर मेथड्स. So here we can see the criteria for measuring the effectiveness of selection tools and methods. तो इसमें हमने कहा कि जी जो आपका मेथड है, जो टूल्स हैं, इट शुड बी प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन. ये इसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिड इंफॉर्मेशन ये पास ऑन करें, वैलिडिटी होनी चाहिए. इट कैन बी जनरलाइज्ड, ये जनरलाइज हो सके to different situations, to different jobs, to different environment, to different organization size, to different candidates. Or the selection method should be offering utility. उसमें कोई utility हो, उसको कोई benefit हो. Selection criteria should be legal. It should not be violating any legal implication that is in place from organization or from government or certain regulatory bodies. So let us see what are the criteria one by one for in order to measure the effectiveness of selection tools and methods. So starting with this reliability. Well, actually reliability is the extent to which a measurement is free from random error. कि आपका जो टूल है या आपका जो प्रोसेस है या आपका जो टेस्ट है, जो आपका मैयर है, वो कंसिस्टेंटली सेम रीडिंग दे रहा है. आप IQ मैयर करते हैं एक टेस्ट के साथ, उसका आज स्कोर निकलता है जी 115, ठीक है. ये ना हो कि कल उसका स्कोर उसी सेम पर्सन का, आप ये जो IQ के लिए आपने जो मैयर यूज़ किया है, तो इस बंदे का स्कोर आया जाए जी 70. इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अब यहाँ पे लग रहा है कि इट इज़ कमिट सर्टन रैंडम एरर, कभी ऊपर चला जाए कभी नीचे. उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए. उसके टूल, आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं किसी पर, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए. वो कंसिस्टेंटली सेम मैयर, सेम रीडिंग्स दे. रिलायबल measurement generates consistent results. So consistency or reliability of scores, consistency of scores obtained by the same person when retested with the identical or equivalent test. हम consistency को, reliability को इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉई है, एक कह ले के पर्सन A, उसका हम IQ का टेस्ट पहले एक करते हैं, ठीक है ना. इसे हम कह लें IQ का ये टूल है X, और इसी से मिलता जुलता आइडेंटिकल, हैविंग आइडेंटिकल इक्वलेंट आइटम्स. हम इसे कहते हैं IQ टेस्ट Y.
तो इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, बिकॉज दीज बोथ ऑफ दीज टूल्स आर सिमिलर, पर्सन इज सिमिलर, सो इट शुड गिव वेरी सिमिलर रिजल्ट्स। और अक्रॉस अगर हम एक बंदे को, यहाँ पे हमने एक बंदे को 2 दफ़ा किया है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा किया, यहाँ पे हमने टेस्ट ज़्यादा, यहाँ पे 2 टाइम्स हैं, यहाँ पे 2 टेस्ट हैं। ऑन बोथ ऑफ द ओकेजन्स देयर शुड बी अ क्लोज मैच बिटवीन द स्कोर दैट अ पर्सन अचीव्स। तो उसमें कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी होनी चाहिए, नहीं हम आज करें तो ज़्यादा स्कोर है, कल करें तो स्कोर कम हो गया, अब्रप्ट चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट शुड गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। उसमें रिलायबिलिटी, जब भी आप वो चीज़ रन करें, वो चीज़ मेजर करें, तो उसमें उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। So now we are going to see other criteria to check the effectiveness of selection tools and methods. The method or the selection tool or process should be valid. It means that it is the extent to which the performance on a measure, such as a test score, is related to what the measure is designed to assess. जो हम टेस्ट रन कर रहे हैं, क्या ये टेस्ट वही चीज़ मेजर कर रहे हैं जो हम एक्चुअल मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं, किसके लिए, फॉर अ डाटा एंट्री जॉब। सो इज इट अ वैलिड मेजर टू चेक द जॉब परफॉर्मेंस ऑन फॉर through typing speed on a data entry job. So we have to check that what is the validity of a particular test or a particular measure for the successful performance on a given job. तो हम देखते हैं क्या ये चीज़ उसमें वैलिड है कि नहीं है। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हायर करने हैं तो उसमें ये चीज़ तो वैलिड होगी कि उसकी नॉलेज ऑन गिवन सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज, लेकिन अगर हम उसकी चेक करने शुरू हो जाएं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, एग्रीएबलनेस क्या है, उसकी क्या लेके नर्वसनेस क्या है, या उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, तो इट वोंट बी आर वैलिड मेजर। तो वैलिडिटी आपने इंश्योर करनी है कि जी क्या ये एक्चुअली वही मेजर कर रहा है जो हम मेजर करने जा रहे हैं, क्या ये कुछ और तो मेजर नहीं कर रहा, ठीक है ना। हमारी उसमें वैलिडिटी, वो टेस्ट या वो इंटरव्यू वो वैलिड होना चाहिए, जो भी हम चीज़ करें उसको वैलिड होना चाहिए। तो किसी और जॉब के लिए हम इस तरह कह लें कि सेल्स की जॉब, या आप कह लें कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब, लेट्स से फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब है, उसके लिए आप उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हो। सो इज इट अ वैलिड क्राइटेरिया? नो। सो वी आर टू गो फॉर ओनली वैलिड क्राइटेरिया, वैलिड selection method and tools that would be actually determining the performance on that job. उसमें एक चीज़ reliability, दूसरी validity होनी चाहिए कि वो actually वही चीज़ चेक करे जो हम चेक करने जा रहे हैं, कुछ और ना चेक कर रहा हो। Next इसका criteria कि जी is there any is this test can be generalized to different situation. So a test that is generalizable, ठीक है। A generalizable selection method applies not only to the conditions in which the method was originally developed. जिस जॉब के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिन एम्प्लॉयज़ के लिए और जिस टाइम पीरियड के लिए डेवलप, सिर्फ वहाँ पे उसकी वैलिडिटी ना हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी और जगह पे भी हो। सो इट टूल दैट इज जनरलाइजेबल can also be applied to other organizations, jobs and applicants. So अगर वो valid है, अगर वो if we can apply it on other situations, so we say that it can be generalized, it can be used at certain other occasions as well. So we can see that intelligence, ठीक है ना, और उसके thinking skills, cognitive abilities, these measures can be generalized across many jobs. तो intelligence या उसकी cognitive ability, ये क्या है, it is required, it is a valid criteria or it can be applied to most of the jobs. तो जो generalizability है इस IQ की या GAT score की या आपके GRE score की, so it is valid on various situations. NTS के टेस्ट हैं वो यूनिवर्सिटीज़ भी अप्लाई करती हैं अपने एडमिशन्स देने के लिए,
और वो एम्प्लॉयमेंट में भी अप्लाई हो रहा है. सो वी कैन से दैट जनरलाइजेबिलिटी ऑफ दिस NTS टेस्ट is higher. It can be applied to various situations, to various jobs, to different types of organizations. So generalizability means that this method or this tool can be used on different situations. It may be different jobs, different organizations, different applicants, or different time period. So this was the third characteristics to judge the effectiveness of a measure of a selection tool or selection method. Next is the selection method that you employ should be having some practical value and utility. So here we are going to check the cost of applying that method. So जो हम टेस्ट के लिए अगर कोई टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, तो वो क्या वो उसकी कॉस्ट है वो उसको जस्टिफाई करती है. ये ना हो कि हम के सेलेक्ट करने हम कोई सेल्स ऑफिसर, सेल्स सुपरवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल पे जाएंगे और हम उन पे बहुत कह लें कि एक्सपेंसिव किस्म के टेस्ट रन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू चेक देयर कोग्निटिव एबिलिटी. उसको स्कैन वो हाई फाई जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हम उनके थ्रू उनकी जो कोग्निटिव रिएक्टिविटी है, जो रिस्पॉन्स है, उनके कोग्निटिव रिस्पॉन्स है टू वेरियस क्वेश्चन और टू वेरियस सिचुएशन, हम वो चेक करना शुरू करें. सो अल्टीमेटली इट वोंट be justified to run these highly expensive tests just to check the suitability of applicants to jobs that are not so much important for an organization. तो उसमें जो सिक्योरिटी की या क्लीनिंग की जॉब्स हैं तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट हमें नहीं रन करने चाहिए. अच्छा, इसमें सिलेक्शन मेथड शुड कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लेस देन द बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉय. सो इसमें कह लें कि बेनिफिट आपको नजर आना चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है और उसके आपको बेनिफिट्स क्या है. सो द मेथड्स दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक वैल्यू ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज टेस्ट आर सेड टू हैव यूटिलिटी. तो यूटिलिटी उस टेस्ट की होगी जिसके बेनिफिट ज्यादा हैं यूज करने के और उसकी कॉस्ट कम है. सो यू कैन नॉट एक्चुअली गो फॉर टेस्ट दैट आर एक्सपेंसिव, that are high, costing high, and for which benefit to the organization for selecting appropriate employees is low. Well, where we can see an example, the selection of salesperson for $1 million sales. Here for this situation, अगर हमने use करने हैं sales person, sales staff to sell software or to sell computer equipments, computer parts that involve $1 million sales, $1 million transactions. So we can run expensive tests in order to judge their ability to perform on that jobs, because ultimately we would be at a beneficial point. ठीक है, हम एक better end पे चले जाएंगे by running expensive, but we cannot run expensive tests in order to check the suitability of staff of fast food restaurant जिसने simple waiters की job. इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के टेस्ट रन करने की ज़रूरत नहीं, एक्सपेंसिव टेस्ट इसमें. सो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फॉर to check the effectiveness of selection tools and measures that whether it is offering certain utility or not. तो उसकी कॉस्ट और बेनिफिट में आपने एनालिसिस करना है. Well, this for reliability, validity, उसकी generalizability, utility और legality. These were the characteristics that we can use in order to check the effectiveness of selection tools and methods. Now we are going to see that what is actually a selection process. So selection process है क्या, इसमें क्या क्या steps involved होते हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं. So this selection process हमने जैसे start में कहा कि it actually takes start from the point where recruitment has ended, has actually generated a pool of applicants. So यहाँ पे हमारे पास एक pool of applicants है, pool of applicants. अब ये selection process start हो रहा है. देखें ये इधर हमारे पास क्या है, pool of applicants,
और ये सारा अब देखें अल्टीमेटली यहाँ पे ये ज्यादा है, पूल हमारे पास ज्यादा, और फॉर ईच सक्सेसिव स्टेप वी आर गोइंग टू मेक ए ट्रिम, ये छोटा होता जा रहा है। हमारा फाइनल सिलेक्शन पे हमने वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली अ फ्यू ऑफ एम्प्लॉइज दैट वी हैव डिसाइडेड कि 5 रखने हैं, 15 रखने हैं, 2 रखने हैं, एक बंदा कितने रखने हैं, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे उतने ही रखने हैं। ये टिप है, वी वुड बी सिलेक्टिंग ओनली द पीपल only number that we have actually decided prior to starting this selection process. So हम exact जितनी हमने वैकेंसी आइडेंटिफाई की थी हमने उतने ही लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। Well now let me describe that what are different stages of this selection process. So इसमें पहला है जी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। ये क्या है, हम एप्लीकेंट की स्क्रीनिंग करेंगे थ्रू जॉब एप्लीकेशंस एंड रिज्यूमे। तो इसमें हम देखेंगे दे मीट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस उनके पास है, उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या दूसरी कुछ और चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और हम चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जी वेदर दे क्वालिफाई फॉर सुटेबल कैंडिडेट एज अ सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट। तो पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे थ्रू एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके टेस्ट लेंगे और हम कुछ वर्क सैंपल्स रिव्यू करेंगे। एम्प्लॉय टेस्ट, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस का टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, दूसरे इस तरह के टेस्ट हैं वो हम रन करेंगे इन ऑर्डर टू चेक देयर सुटेबिलिटी टू बी गुड परफॉर्मर ऑन दैट जॉब। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में इनके जो इंटरव्यूज होते हैं आफ्टर द पीपल हु सक्सेसफुली क्वालिफाई एट द थर्ड स्टेज दे वुड बी कॉल्ड फॉर interviews. Well, interviews, we can see that this is the most used practice in a selection process. तो इंटरव्यू के बगैर हम कहीं पे भी नहीं देखते किसी ने कोई बंदा रखा हो। तो इंटरव्यू हम कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिलेक्शन प्रोसेस में ना, ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, after we have conducted interviews we would be actually checking their reference and background. तो जो जिन लोगों को हमने जॉब ऑफर करनी है उससे पहले हम उनके बैकग्राउंड चेक कर लें कि दे डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, they have not defaulted on any bank loan or something. We are to check their credit history. अच्छा, we are to check their educational degrees, वो इनसे चेक करें यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से that they have mentioned, और उनके जो एक्स एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ से डाटा लें। If they are experienced and they have mentioned that I have worked with this organization, so with this manager, they may have given their references within application or within resume. So you may check from these ex-employers or supervisors. उन organizations या उन supervisors से आपने पूछना है with whom they have worked कि ये किस किस्म के employees हैं। आप उनसे चेक करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी लॉसूट। आप कोई इलीगल हायरिंग ना कर लें, कोई ऐसी क्या लें क्वेश्चनेबल हायरिंग ना कर लें। अल्टीमेटली वी आर टू मेक फाइनल डिसीजन। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। within this lecture 7, we would be discussing only 2 of the steps of this selection process. ये हम यहाँ पे स्क्रीनिंग एप्लीकेंट्स एंड रेज्यूमेस ये देखेंगे और देखेंगे टेस्टिंग एंड रिव्यूइंग वर्क सैंपल्स। तो एप्लीकेशन और रिज्यूमे को स्क्रीन कैसे किया जाता है, कैसे हम इसको ट्रिम करेंगे, छांटी कैसे करेंगे हम इनकी रेज्यूमे की एप्लीकेंट्स के थ्रू रिज्यूमे और एप्लीकेशंस, और फिर उसके टेस्ट कैसे लेने हैं और वर्क सैंपल्स कैसे लेने हैं, ये हम इस लेक्चर में देखें, लेक्चर 7 में देखेंगे। और दीज 2 स्टेजेस उसके इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक और ये टिल द एंड प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये हम चेक करेंगे लेक्चर 8 में। सो लेक्चर 7 में विद इन दिस लेक्चर वी आर टू discuss only how to screen applicants and resumes and how to test and review work samples. So here we are going to see that
how an organization or how HR department would screen applications and resumes. Well, individuals actually show their job interest, and organizations seek background information on applicants through job applications and resumes. तो एप्लीकेंट्स ने अपनी इंटरेस्ट देनी होती है, एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी होती है थ्रू एप्लीकेशन रेज्यूमे दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. तो एक्चुअली ये एप्लीकेंट पॉपुलेशन में तो हैं सारे, लेकिन एप्लीकेंट पूल में ये कैसे हैं, जो हमने लास्ट रिक्रूटमेंट में पढ़ा, तो एप्लीकेंट पूल में ये लोग तब आएंगे व्हेन दे वुड बी अप्लाइंग अगेंस्ट दोज जॉब्स. सो बाय शोइंग देयर इंटरेस्ट दे आर एक्चुअली प्लेसिंग देम फ्रॉम एप्लीकेंट पॉपुलेशन टू एप्लीकेंट पूल. हमने उसमें रिक्रूटमेंट में पढ़ा ना, डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स मार्केट, एप्लीकेंट पॉपुलेशन और एप्लीकेंट पूल. तो यहाँ पे बाय शोइंग देयर इंटरेस्ट विद इन दीज जॉब्स दे आर actually placing them in from applicant population to applicant pool. Or by actually asking these job application and resumes, organizations would be actually having background information on these applicants. What are their qualifications, their experiences, their interests, their hobbies, their skills, their linguistic skills. ये organization कैसे लेंगे data? By actually requiring job applications and resumes. यहाँ पे हम देखते हैं कि organization get reasonably accurate information by combining through this process ना, ये application और resume के through ये क्या कर सकते हैं, organization can get reasonably accurate information by combining applications and resumes with background information, बैकग्राउंड चेक्स एंड वेल डिजाइंड इंटरव्यूज. तो जो हमने प्रीवियस देखी ना स्लाइड सारी, तो उसमें स्टार्ट हो रहा है उसके स्क्रीनिंग, रिज्यूमे एंड एप्लीकेशंस. उसके बाद उसके ये देखें स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड रिव्यू वर्क सैंपल्स, इंटरव्यूइंग और चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड. अब ये क्या लिखे, एप्लीकेशन और रिज्यूमे से उनके पास एक तरफ से डाटा आएगा, दूसरा वो डाटा लेंगे इंटरव्यू में, और थर्ड वो चेक करेंगे रेफरेंसेस और बैकग्राउंड. तो इनमें जितनी कंसिस्टेंसी या मैच या उसमें कह लें कि फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन बी चेक्ड बाय एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे. सो एनी इनकंसिस्टेंसी within information provided by applicants can be checked by comparing information that they provide through their resume and job application during interviews and during final background checks and reference checks. तो इनमें हम देख रहे हैं कहीं पे inconsistency या mismatch कहाँ पे है. तो ये सारे क्या लेके स्क्रीन करने का और उसके थ्रू एप्लीकेशन और रिज्यूमे, उसका एक पर्पस ये भी अगर दे कैन एक्चुअली चेक द रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे वुड बी प्रोवाइडिंग लेटर ऑन ड्यूरिंग इंटरव्यूज, और ऑर्गेनाइजेशन वुड बी एक्सेसिंग थ्रू बैकग्राउंड चेक्स एंड रेफरेंस चेक्स. तो ये आपने बाद में करने हैं ना, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड. तो इसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी जो इंटरव्यू में आएगी और जो उन्होंने यहाँ पे दी है एप्लीकेशन और रिज्यूमे में, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी, उसमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, उसमें कितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी है. सो यू कैन एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस person has given very true information, accurate information, and this person doesn't lie on any issue. तो ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? by making a comparison. So दिस स्क्रीनिंग एप्लीकेशन और रिज्यूमे का एक हो गया, उनके पास एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन आती है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे कैन चेक एनी इनकंसिस्टेंसी between information provided by applicants through applications and resume and background checks as well as interviews. So इनमें inconsistency check हो सकती है. Next, by the way of these application and resumes, HR department would go for certain pre-employment screening. ये जितनी application या resume आती हैं तो
इनके आने से पहले वो कुछ स्क्रीनिंग करते हैं। किस तरह स्क्रीनिंग करते हैं? दे में आस्क सर्टन मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट ओनली MBAs कैन अप्लाई ऑन दिस सिचुएशन, ऑन दिस पोजीशन। ओनली आप कह लें कि people who are expert or who can work on Java can apply on this job। आप उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दे देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ MBBS अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पीपल हु हैव स्पेशलाइजेशन इन सर्टन हार्ट मेडिसिन्स वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन दे के तो कुछ प्री स्क्रीनिंग कर देते हैं कि अब लोग उस पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्री एम्प्लॉयमेंट्स, ये जॉब एप्लीकेशन या रिज्यूमे में जो आप सेट करते हैं सारी कंडीशंस, दीज आर एक्चुअली मेंट फॉर सर्टन प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग। लोग उस पर फिर अप्लाई ही नहीं करते। आप कह देते हैं कि जी पर्सन मस्ट बी हैविंग मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, तो जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री नहीं होगी, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट जॉब। तो आप इसको लिमिट करते जाते हैं by asking applications or resume, so you have gone for pre-employment screening। उसमें कहते हैं कि जी इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, या आप कह देते हैं the people who have less than 2.5 GPA, 2.5 GPA से less हो, less than 2.5 GPA cannot apply। तो वो लोग सारे क्या है। फिर आप उसमें क्या लेते हैं कि द पर्सन हु हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कैन ओनली अप्लाई। अगेन आपने कोई बार लगा दी। अच्छा, सर्टन आर्मी की मिलिट्री की जॉब्स होती हैं कि जब पीपल मस्ट बी हैविंग 5 फीट एंड 6 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, 5 फीट एंड 6 इंच ये हाइट, आपने ये बार लगा दी। अब कुछ और फिजिकल स्ट्रेंथ की बार लगा सकते हैं। इसी तरह और कोई क्राइटेरिया हो सकता है। एक्सपीरियंस आप कर देते हैं कि जी द पीपल विदाउट एक्सपीरियंस शुड नॉट अप्लाई, और पीपल हु हैव एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस इन HR डिपार्टमेंट एंड 2 year एक्सपीरियंस ऑन रेलेवेंट पोजीशन कैन ओनली अप्लाई। सो बाय एक्चुअली स्टेटिंग द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू हैव गॉन फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग। तो इससे आप जो अपना पूल है वो रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं, वो आप शॉर्ट करते जाते हैं। उसमें आप सिर्फ जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ लोग हैं उनको ही आप अप्लाई करने पे इंड्यूस करते हैं। अच्छा, अब इसमें स्क्रीनिंग में कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्री स्क्रीनिंग भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं नाउ विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, they may have gone for scanning resume and applications through computers। तो कंप्यूटर उस एप्लीकेशन को, रिज्यूमे को स्कैन कर सकते हो। तो कुछ इसमें ये भी गुंजाइश है प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग की बाय यूजिंग सर्टन इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। अच्छा, इसमें फिर बट बी श्योर दैट व्हाट्सएवर क्राइटेरिया यू सेट for this job should be valid and it should be job related। तो आप किस जॉब में मास्टर डिग्री रिक्वायर कर सकते हैं, किस जॉब में आप कहते हैं कि जी इतना एक्सपीरियंस हो, किस जॉब में आप ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, किस जॉब में आप हाइट चेक करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज स्क्रीनिंग क्राइटेरिया शुड बी related to the job। So if this criteria is not related to the job, so applicants or different agencies may actually file a lawsuit against your organization। तो आपके ऊपर केस हो सकता है अगर आप सही वो नहीं करते, सेट आपका क्राइटेरिया नहीं है तो आपके ऊपर केस हो सकता है। So all of these pre-employment screening should be based on relevant criteria। उसमें कोई चीज़ irrelevant ना हो। आप कोई सेल्स की जॉब के लिए हाइट फिक्स ना करें। नेक्स्ट है जी, हम इसमें देखते हैं कि जी स्क्रीनिंग एप्लीकेशन रिज्यूमे, तो उसमें 2 ऑप्शंस है। वन इज एप्लीकेशन फॉर्म। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस में डिजाइन सर्टन एप्लीकेशन फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन में purchase certain application forms। So for organizations, these application forms have certain standard categories of information। तो इसमें application form में कुछ categories आते हैं वो जो require करते, पूछते हैं, information पूछते हैं। So they may actually
ask applicants about contact information, work experience, their educational background, technical experience, membership in professional or trade organizations. So these may be different different information categories that usually application forms seek from the applicants. ये मैं अभी आपको शो करता हूँ कि एक typical application form कैसा होता है. Now let us discuss what are the purposes of this, what might be the possible purposes of this application form. अच्छा, by having filled these application form, it may serve as a record of applicants' interest in the job. तो आपने जब application form fill कर दिया है, so it shows that you are interested to have a job at that position in this very organization. अच्छा, अब ये क्या application का जो record बन गया है आपने वो क्या, it provides a profile of the applicant. आपकी एक प्रोफाइल बन गई उनके पास that they would be using through selection procedure, and once you have been hired, so it serves as a basic record for applicants. So अब उनके पास application सारी filled हुई हैं, तो उसमें जो select हुए हैं वो रख लेंगे as a permanent record of their employee. So these may be the probable purposes of application form. अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ये डिस्क्लेमर या नोटिसेस भी हो सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में इंडिकेट द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विदाउट कॉज और नोटिस. तो जो हमने कहा ना एम्प्लॉयमेंट एट विल पॉलिसी, HR पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट एंड विल, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह की पॉलिसी शो कर सकता है. एप्लीकेशन फॉर्म कह सकता है कि इट ऑब्टेन्स एप्लीकेंट्स परमिशन of contact references. Now the contacts that you are providing, references you are providing, may be contacted by the organization. So it actually seeks permission from the applicant by getting the application filled in terms of getting in terms of rights to access these references. Now इसमें एक चीज़ है, स्क्रीनिंग प्रोसेस में एक एप्लीकेशन है, दूसरा क्या है जी, रिज्यूमे. अभी देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म एक टिपिकल कैसा हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म. तो इसमें स्टार्ट होता है क्या है जी, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और उसके क्या लेके सब हेडिंग है इक्वल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर. तो ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द बेसिस. अब नीचे इसका जो क्या लेके लेजेंड दिया हुआ है, if you indicated you can ये एंड पे हो, ये उसका जो स्टार है ये यहाँ पे है, एंड पे है दूसरी स्लाइड में. So it shows that we are an equal opportunity employer. We do not discriminate on the basis of race. ठीक है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रेस, रिलीजन, कलर, जेंडर, एज, नेशनल ओरिजिन और डिसेबिलिटी. तो ये शो कर रहा है कि वी आर फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस. तो देखें कि जी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या हेड्स होते हैं. सो इट स्टार्ट्स विद दिस डेट. सो अब यहाँ पे डेट लिखेंगे, आज क्या डेट है जी, May 29, 2013. तो यहाँ पे डेट आ जाएगी. सो इट वुड बी सर्विंग अ पर्पस टू कीप द रिकॉर्ड फ्रेश. उसको एक टैग लगा देगा ये कब फिल हुई है एप्लीकेशन. अच्छा, इसमें पहला है जी पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेंट हु इज फिलिंग दिस फॉर्म. इसमें नेम, अच्छा उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता. जो अमेरिका, कनाडा या यूरोप, यहाँ पे हर बंदे का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है ऑन विच दिस पर्सन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट और वर्क ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन. इस नंबर के बगैर आपको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. अच्छा, उसका करंट एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल, अब व्हाट पोजीशन आर यू अप्लाइंग फॉर, डेट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट. आप शो करेंगे आई एम अवेलेबल फॉर दिस जॉब फ्रॉम जनवरी 2014, इस तरह आप. अच्छा, आर यू विलिंग टू रिलोकेट,
आप ये शो करेंगे येस नो, दूसरी जगह पे जा सकते हैं नहीं जा सकते। आर यू विलिंग टू ट्रैवल इफ रिक्वायर्ड, सो इफ जॉब रिक्वायर्ड ट्रैवल, सो वुड यू बी विलिंग टू ट्रैवल, ठीक है ना ये चीज़। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर्स, वीकेंड्स, आर ओवर टाइम, इफ यस एक्सप्लेन, तो आप क्या सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे, नाइट पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्या आप सिर्फ वीकडेज में करेंगे, वीकेंड पे नहीं करेंगे, ओवर टाइम करेंगे नहीं करेंगे, तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें ये मेंशन करनी है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी, ठीक है, तो और आर एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज बिफोर, इंडिकेट लोकेशन एंड डेट्स, कब कब आप एम्प्लॉय रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, ये दूसरी चीज़। फिर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब फंक्शंस, ये एक ये हेड हो गया। दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ जॉब फंक्शन, आर यू एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग विद और विदाउट अकोमोडेशन, तो आप किसी हेल्प के बगैर कर सकते हैं या कोई हेल्प चाहिए, ठीक है। यस विदाउट अकोमोडेशन, यस विद अकोमोडेशन, नो। तो यहाँ पे आपने वो शो करनी कि कौन से अकोमोडेशन आपको चाहिए उस जॉब पे परफॉर्म करने के लिए। इसमें और क्या चीज़ें हैं जी, एजुकेशन पे ये पूछेगा, आपने अपने हाई स्कूल, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, इसका देने इंफॉर्मेशन, और ये अगर कोई ड्राइविंग इन्वॉल्व होती है तो ड्राइविंग रिकॉर्ड आपका वहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिज्यूमे। So the most usual way through which applicants introduce themselves to employers is through resume. सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है resume। Well, it has certain drawbacks for organization because the content of the information and the way it is presented, content क्या क्या चीज़ें आप देते हैं रिज्यूमे और किस सीक्वेंस में देते हैं, इट इज़ एक्चुअली डिसाइडेड अबाउट बाय द एप्लीकेंट नॉट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको एप्लीकेशन प्रोसेस करना आसान है उनके लिए, ये क्योंकि सारी उनकी अपनी क्या लेके सीक्वेंस में और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो सारे एक स्टैंडर्ड वे में आ रही है। रिज्यूमे स्टैंडर्ड वे में नहीं है एज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर, उसमें नहीं है। रिज्यूमे एप्लीकेंट अपनी मर्जी से बना के देते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि एम्प्लॉइज एप्लीकेंट्स कोई चीज़ें कंसील कर लें, कोई चीज़ें हाइड कर लें। बाय रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिज्यूमे, HR पर्सनल कैन, इसके एंड पे क्या होगा रिज्यूमे और एप्लीकेशन के एंड पे, दैट दे कैन आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। वो आइडेंटिफाई कर सकते इसमें आउट ऑफ दिस 700 रिज्यूमे और एप्लीकेशन हु आर सुटेबल, who are meeting the required qualification or work experience, ये उसमें से निकालेंगे जी these 35 people actually meet the criteria based upon qualification, based upon degree, based upon GPA, based upon driving license, based upon something else. They may decide these are these meet background, educational background and work experience। और अब इसमें से रैंक भी कर सकते हैं कि जी जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उससे ऊपर रख लीजिए, जिसका एक्सपीरियंस कम है उससे कम। जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले एक तरफ आ जाएं, जो इररेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले वो एक तरफ। रेलेवेंट इंडस्ट्री वाले आप अलग कर लें और रेलेवेंट इररेलेवेंट इंडस्ट्री वाले आप अलग कर लें, तो अब इनको रैंक भी कर सकते हैं। वेल, ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू डिसाइड अगेंस्ट एप्लीकेंट्स। अच्छा, आपने जो रिज्यूमे बनाया ना, ये आपके खिलाफ तब जाएंगे व्हेन योर रिज्यूमे इज ईदर अनक्लियर और इट कंटेन्स सर्टन मिस्टेक्स। तो आपके जो केयरफुली प्रिपेयर्ड रिज्यूमे है दैट एक्चुअली एबल टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर। अच्छा, एप्लीकेंट्स कैन हाईलाइट देयर अकम्प्लिशमेंट ऑन अ रिज्यूमे दैट माइट नॉट शो अप इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो रिज्यूमे में फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, एप्लीकेंट के पास। और एप्लीकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी या कंट्रोल किसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास। सो नाउ यू आर टू गो फॉर विच वे यू थिंक सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज here this was the first stage of selection process. We have actually screened applicants by seeing their applications and resume, और हमने इसके बेस पे shortlist कर लिया है और उसमें से हमने उनको रैंक कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप है जी, वी आर टू कंडक्ट सर्टन टेस्ट और रिव्यू देयर वर्क सैंपल्स। तो अब हम देखते हैं टेस्ट किस किस्म के होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हैं,
These aptitude tests actually assess how well a person can learn or acquire skills and abilities. तो certain aptitude test check करते हैं आपकी engineering की aptitude, आपकी social sciences की aptitude, आपकी mathematics की aptitude या computer science की aptitude. इस तरह वो check करते हैं कि how much you have the ability to learn on that area. आपकी aptitude check हो जाते हैं कि आप किस चीज़ में interested हैं. So aptitude tests can be used as selection criteria. Another option is to go for achievement test. So achievement test measure a person's existing knowledge and skills. वो देखते हैं कि अभी आपके पास कितना knowledge या skill है. So these tests actually are used to select, may be used as valid criteria to select civil servants. हमारे CSS के एग्जाम में actually achievement test check कर रहे होते हैं कि जी आपका knowledge किसी भी एरिया पे, करंट नॉलेज, करंट अफेयर्स पे, या आपका फिज़िक्स पे, या साइकोलॉजी पे, ठीक, या इस्लामिक स्टडीज़ पे आपका नॉलेज कितना है. तो वो आपका अचीवमेंट चेक कर रहे थे बाय द वे ऑफ मेजरिंग योर नॉलेज ऑन वेरियस डायमेंशंस. Another option for test may be to check cognitive ability or intelligence test. So it measures cognitive ability test measure an individual's thinking, memory, reasoning and verbal or mathematical abilities. So how you can actually play with the numbers, play with words, how you can memorize or recall different facts and figures, how you can reason, how you can think, or how you can base your judgment. So all of these can be judged through cognitive test or intelligence test. Well, these can be these can be measured by actually calculating their IQ test के through कर सकते हैं, ये GRE के टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें इसमें कर सकते हैं हम. Well, these tests are specially valid for complex jobs and for those jobs that require adaptability in changing circumstances. जहाँ पे जॉब्स जो कॉम्प्लेक्स हैं और जो वो वाले जॉब्स जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स या डायनेमिक्स चेंज होती रहती हैं, सर्टन नेगोशिएशन की जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने परचेज डिपार्टमेंट में आप उसको हेड कर रहे हैं, या प्रोडक्शन जो फैक्ट्री या प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको आपने रन करना है. सो दीज आर कॉम्प्लेक्स जॉब्स दैट मे रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स, thinking skills, different reasoning, judgmental skills, or verbal and mathematical skills. So cognitive ability tests are valid for a variety of job situations. Well, what are the other options regarding these tests? Are physical ability tests. They measure strength of a person, their endurance, muscular movements, or they may actually check their cardiovascular ability. So these are physical ability tests. They can only be run for certain jobs. The job that involves certain physical work. They cannot be actually executed or tested for jobs that are that don't require any type of physical work. Managerial jobs हैं तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते. जैसे आर्मी की जॉब्स हैं तो उसमें फिजिकल होता है, एलिमेंट होता है, तो उसकी ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो सकती है. पायलट है तो उसकी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होती है कि वो कैसे चीज़ों को चेक करता है या एवेल्युएट करता है, या उसकी कितनी एंड्योरेंस क्या है, या उसकी मस्कुलर मूवमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है. तो ये हो सकता है उसके. लेकिन सर्टन मैनेजरियल या फाइनेंशियल एनालिस्ट के या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी यूज. अच्छा, साइकोमोटर टेस्ट यूज हो सकते हैं. दे मेजर डेक्सटेरिटी, उसकी फिजिकली हार्ड होने को, ठीक है ना, उसका स्टेमिना को. अच्छा, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, आप अपने हाथ और आँख को देखते हुए एग्जैक्ट मशीन्स को ऑपरेट कर सकें. आर्म हैंड स्टेडीनेस, कि आप किसी चीज़ को बड़ी मजबूती से होल्ड कर सकें. और दूसरी चीज़ें इसमें चाहे साइकोमोटर, ठीक है ना, कि इसमें आपकी माइंड और आपकी मूवमेंट वो दोनों एक सिंक्रोनाइज या एक मैच में होनी चाहिए. वेल, दीज फिजिकल एबिलिटी टेस्ट एंड साइकोमोटर टेस्ट, they are essential for effective performance at certain jobs that may involve certain mechanical ability.
एज वेल एज दे आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड सर्टन इंजरी। जो साइकोमोटर टेस्ट हैं ये शो करेंगे कि पर्सन कैन अवॉइड इंजरीज आर नॉट। जो कह लें हाई राइज बिल्डिंग्स पे जो वेल्डिंग के और डिफरेंट काम कर रहे हैं, जो ऊपर वर्कर जो डे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए ये साइकोमोटर टेस्ट ये वेरी एसेंशियल हैं कि उनको उस प्रोसीजर से गुजारा जाए। Well, these physical ability tests may discriminate women and persons with disabilities। तो वो जो औरतें हैं या लोग जो डिसेबल्ड हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। So in order to actually avoid lawsuits against your firm, you are to actually ensure that all of these ability tests are actually job related। Essentially इसे job related होने चाहिए। You are to prove that these physical abilities or psychomotor tests are job related। They are actually they take a very important role in determining the job performance or on that job। Well, what are other options? अब इसमें हम देखते हैं कि जी टेस्टिंग एंड रिव्यूइंग वर्क सैंपल्स में एक जॉब परफॉर्मेंस टेस्ट और वर्क सैंपल्स हम कैसे ले सकते हैं। Well, certain jobs require specialized skills। कि आपने कोई मशीन ऑपरेट करनी है, आपने फ़ोन कॉल्स हैंडल करनी है, आपने डिज़ाइन एड्स डिज़ाइन करनी है, आपने सर्टन मार्केटिंग प्लान्स बनाने हैं, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखने हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप कोई टेस्ट रन करना इट सीम्स ऑकवर्ड, सो यू कैन एक्चुअली चेक देयर वर्क सैंपल्स, ठीक है। सो वी कैन गो फॉर वर्क सैंपल टेस्ट फॉर सर्टन जॉब्स। So work sample tests require an applicant to perform a simulated task। उसे किसी एक जॉब आप ये काम करके दिखाओ। So keyboarding can be a work sample, ठीक है। आप बैठा के उसको उसकी टाइपिंग स्पीड चेक करें इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम वर्बली कि आपकी क्या स्पीड है। तो कहने को मैं कह दूंगा मेरी 60 है लेकिन एक्चुअल तो मेरी 25 है। सो इट कैन बी चेक्ड बाय एक्चुअली रिक्वायरिंग दिस पर्सन टू शो देयर टाइपिंग स्पीड। और इन बास्केट टेस्ट होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि मैनेजर के पास एक इन बास्केट होते हैं, एक आउट बास्केट होते हैं। इन बास्केट में डिफरेंट मेमोज, रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिक्वेजिशन, डिफरेंट लेटर आर्स हैं, डिफरेंट कोई और चीज़ें आ रही होती हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना, ऑर्गेनाइज करना और उस पर डिसीजन लेना। सो दिस कैन बी वर्क सैंपल। वेल, फॉर सर्टेन जॉब्स कैंडिडेट्स में शो देयर एग्जिस्टिंग सैंपल्स। जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो आपने वर्क सैंपल शो कर सकते हैं। देखें मैंने ये काम किया है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो अपना सॉफ्टवेयर दिखा सकता है, मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सो दिस कैन बी अ वैलिड क्राइटेरिया टू यूज़ वर्क सैंपल एज टेस्टिंग एज रिव्यूइंग देयर एबिलिटीज टू परफॉर्म ऑन फ्यूचर जॉब्स। अच्छा, ये तो थी सर्टन लोअर लेवल जॉब्स जिसमें इंडिविजुअल ने खुद परफॉर्म करना है। अगर कोई ऐसी है मैनेजरियल जॉब जिसमें आपने लोगों को मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए होते हैं असेसमेंट सेंटर्स। व्हाट आर असेसमेंट सेंटर्स? एक्चुअली देयर इज अ सीरीज ऑफ एवेल्युएशन एक्सरसाइजेस। तो इसमें बहुत डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं एंड टेस्ट दैट आर यूज्ड फॉर द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। तो इसमें इनकी डेवलपमेंट भी कर देते हैं। अगर एग्जिस्टिंग को गुजार रहे हैं, इन क्या लेके इन हाउस उन्होंने सेलेक्ट करने हैं तो उनकी डेवलपमेंट भी हो सकती है। अगर बाहर से सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की बाय एक्चुअली मेकिंग देम टू परफॉर्म ऑन वेरियस एक्सरसाइजेज एंड टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है? मल्टीपल रेटर्स असेस पार्टिसिपेंट्स इन मल्टीपल एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम। डिफरेंट किस्म की चीज़, उसमें कहीं पे ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी, कहीं पे कोई करंट अफेयर्स का टेस्ट हो जाएगा, कहीं पे कोई जनरल नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा, कहीं पे कोई फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, कहीं पे इस तरह ये इन बॉस का टेस्ट हो सकता है, कोई और मैनेजमेंट की गेम्स उनको दे सकते हैं। इस तरह डिफरेंट चीज़ें, कहीं पे इंटरव्यू हो सकता है। मल्टीपल एक्सरसाइज प्रॉब्लम से उनको गुजारते हैं असेसमेंट सेंटर्स में। वेल, दीज एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम्स शुड बी रिलेटेड टू द जॉब्स फॉर विच द इंडिविजुअल्स आर बीइंग स्क्रीन। तो एसेंशियली इनको उससे रिलेटेड होना चाहिए। हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि चाहे आप टेस्ट करें, इंटरव्यू करें, आप कोई उनके पर्सनैलिटीज़ में फिजिकल एबिलिटी मैयर करें, असेसमेंट सेंटर करें, वर्क सैंपल्स लें, सारी चीज़ें वो वैलिड क्राइटेरिया होना चाहिए, कहीं पे भी आउट ऑफ रेंज ना हो। अच्छा, वी कैन ऑल्सो टेक सर्टन जॉब
परफॉर्मेंस टेस्ट, these जो हमने कहा जॉब परफॉर्मेंस टेस्ट हैं थ्रू वर्क सैम्पल्स हैं या असेसमेंट सेंटर्स हैं, these are valid because they are specific to the jobs for which they are being held. क्योंकि किसी एक जॉब के लिए कर रहे हैं, अब आपने अगर एड डेवलपर लेना है तो वो उसने ऐड जो बनाई वो आपको दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर लेना है तो वो अपने सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है, एक आपने स्क्रिप्ट राइटर लेना तो वो अपने स्क्रिप्ट्स लिखे हुए दिखा रहा है. So it can be a valid and reliable criteria, and it's highly valid when combined with cognitive ability test or structured interview. So this was about testing and reviewing work samples. अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं इसमें टेस्ट में और वर्क सैंपल्स में कि पर्सनालिटी टेस्ट हम कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स. इसमें ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जी: एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस. स्टूडेंट्स, आपने ये अपने ओबी के कोर्स में पढ़ी होंगी डिफरेंट पर्सनालिटी. ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. अच्छा, रिसर्च शो करती है कि पीपल हु स्कोर हाई ऑन कॉन्शियसनेस टेंड टू एक्सेल एट वर्क इन डिफरेंट सिचुएशंस आर फॉर डिफरेंट जॉब्स आर ऑक्यूपेशन. जिनकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है on different jobs. Well, this criteria actually shows that these are dependable or reliable employees. So conscientiousness में क्या है employees? They are achievement oriented, they are careful, hardworking, organized and responsible. So all of these characteristics that are traits of being conscientious show that these are job related traits. So people who are high on conscientiousness would score would show high performance on any given job. अच्छा, वो वाले लोग जो सेल्स और मैनेजमेंट में जिनका रिक्वायर्ड है कि दे आर टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, वहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट कि दे नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट एंड एग्रीएबल. ठीक है ना. सो दीज पीपल वुड बी सक्सेसफुल इन द मोमेंट दे वुड बी हाई ऑन एग्रीएबलनेस और एक्सट्रोवर्जन. सो जो सेल्स की या पीआर की जॉब्स हैं या इस तरह एचआर की जॉब्स हैं जिसमें लोगों से आपने डील करना है, सीएसआर की जॉब है, कस्टमर सर्विस की जॉब है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको हाई होना चाहिए ऑन एक्सट्रोवर्जन और एग्रीएबलनेस. तो देखें एक्सट्रोवर्जन में क्या है जी, दे आर सोशेबल, जल्दी घुल मिल जाते हैं, ग्रेगारियस और टॉकेटिव, बातें करते हैं, और दे आर आउटस्पोकन, ये जल्दी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं. अच्छा, एग्रीएबलनेस क्या है जी, दे आर कोऑपरेटिव, गुड नेचर्ड, सॉफ्ट हार्टेड, टॉलरेंट एंड ट्रस्टिंग. So these characteristics, agreeableness and extroversion, actually determine high performance for jobs that involve interaction with other people. Well, we have completed our lecture 7 where we have actually discussed why careful selection is important. इसमें हमने देखा कि जी अगर आप सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी अच्छे इंसेंटिव दें, जितने अच्छे इनको ट्रेनिंग दें, जितने अच्छे उनके वर्क डिज़ाइन करें, they are not going to be motivated or they are not going to be high performance unless you select capable and able and motivated employees. अच्छा, employee selection क्या है जी, it starts from the point where recruitment has actually identified an applicant pool, और ये उसमें से फिर हमने इनको ट्रिम करना बाय द वे ऑफ स्क्रीनिंग रिज्यूमेज, फिर उनको टेस्ट लेने हैं, इंटरव्यू करने हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और एट द एंड वी वुड बी फाइनली सिलेक्टिंग अ फ्यू पीपल एंड प्लेसिंग देम ऑन द जॉब्स. अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में हमने कहा कि इसमें फ्यू स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप पे हम स्क्रीन करेंगे एप्लीकेंट्स को थ्रू एप्लीकेशन रिज्यूमे. सेकंड पे हम उसके टेस्ट लेंगे, पर्सनैलिटी या एबिलिटी या उसके एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं. नेक्स्ट हम वो लेंगे, उसके इंटरव्यूज़ लेंगे, और उसके बाद हम उसके बैकग्राउंड चेक करेंगे और फाइनल सिलेक्शन होगी इनकी. अच्छा, इसमें हमने डिटेल में पढ़ लिया हाउ टू स्क्रीन एप्लीकेंट्स एंड रिज्यूमे एंड हाउ टू टेस्ट एंड रिव्यू work sample. So this was all about lecture 7. These are the references that I have used for this lecture. HRM
Robert Mathis and John Jackson, Fundamentals of HRM, Raymond A. No, John Hollenbeck, Barry Gerhardt, Patrick Wright, by McGraw-Hill, New York, and the third book is A Framework for Human Resource Management by Gary Dessler. So this was all about our lecture 7. Thank you very much.